Welcome to the first ever episode of Alumni Podcast. Today we are honored to have our guest Dr. Siddharth Sagar with us. He is a visionary in research. He earned his mechanical engineering in 2011. With a passion for innovation, he earned his MTech in nanotechnology at NIT Calicut. It was supported by MHRD scholarship. His career journey spans at the National Aerospace Labs in Bangalore and academia as assistant professor, and eventually holds a PhD from University of Queensland, where he developed the groundbreaking organic photodiodes. Currently, he is advancing organic light sensor research in Germany. Sir, you have such a vast experience. I must have missed on a lot of details. Is there anything you want to add on? Thank you for having me, Ambika. काफी ज्यादा हो गया. I think if you keep on asking questions, so बीच में I'll keep answering to them. So let's take it step by step. Sure, sir. So आप इस वक्त किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? Is there anything that you want to share with us? You want to start from the current project, or let's start from current project, which is very different from the fact that you guys from engineering bachelor's domain and मेरी bachelor's थी mechanical में, तो वो उससे तो काफी different आ चुका है. But ऐसा नहीं है कि mechanical has not been a help in the current research work. I think whatever one learns does contribute to later endeavors of life. As of now, मेरा जो work है, वो ऐसा है कि my PhD was on light sensors. So, developing photodiodes using materials जो कि organic molecules होते हैं. Organic molecules यानी कि dominant elements जो है उसमें carbon based होंगे. तो वो carbon based molecules को केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, बल्कि केमिस्ट्री में द क्लास ऑफ मटेरियल्स में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाफ ऑफ द क्लास ऑफ मटेरियल्स इज ऑर्गेनिक एंड दूसरी क्लास जो है वो इनऑर्गेनिक है. तो जस्ट आपके मॉलिक्यूल में अगर डोमिनेंट एलिमेंट कार्बन है, बहुत ज्यादा कार्बन, बेसिकली कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की फैमिली बहुत बड़ी है. द प्रॉब्लम हैज बीन कि these organic molecules have remained electrically non-conducting. So somewhere in 80s and towards late 80s and early 90s, some people found approach to make organic molecules that are electrically conducting. तो उसके लिए फिर नोबेल प्राइज अवार्ड भी हुआ टुवर्ड लेट 90s. एंड फिर उसने एक अपने आप में काफी एरिया ओपन कर दिया एंड पीपल वर ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि इसको कहाँ का यूज कर सकते हैं. तो अराउंड 2000-2010 के बीच में रिसर्चर्स अराउंड द वर्ल्ड पिक्ड अप दैट दिस मटेरियल हैज पोटेंशियल इन सोलर सेल एप्लीकेशन. समवेयर अराउंड मिड 90s तो शुरू हो गया था, बट ज्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिकेशंस 2000 के अराउंड दिखते हैं. So making materials and making devices, solar cells using such materials. And इसका उनको इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि because of global warming they wanted to have another type of technology. तो solar cells पे आ गए थे. solar cells की नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए थी, सिर्फ सिलिकॉन ना होके कुछ अलग. एंड सिलिकॉन की अपनी इश्यूज हैं, वो फ्रेजाइल है, उसको आप बेंड नहीं कर सकते, एंड उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी हाई है. एंड एक बार खराब हो गया सोलर पैनल तो आप उसको डिस्पोज कैसे करेंगे, उसमें टॉक्सिसिटी काफी होती है. तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, हमारी बॉडी पूरा मतलब ऑर्गेनिक, प्रोटीन सब कार्बन कंपोनेंट्स हैं. तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसके और बेनिफिट्स हैं विच कैन ओवरकम दैट ऑफ द सिलिकॉन सोलर सेल. तो वो एक मोटिवेशन हो गया था उस मोमेंट पे. डाउन द लाइन उसकी रिसर्च पे ये भी पिकअप हो गया कि इफ इट कैन
take sunlight and give current, so it can very much take red light and give current, or blue light and give current, or green light and give current. तो ये लाइट सेंसर क्यों नहीं बन सकता? तो आप क्लिक करते हो तो उस एलिमेंट होता है जो कि पिक करता है, जब उसको रेड लाइट आती है तो वो एक करंट सिग्नल कॉरेस्पॉन्डिंग देता है, एंड तब कैमरा के अंदर के कंप्यूटर को पता चलता है वो इतना रेड लाइट आ रहा है या इतना ग्रीन या इतना ब्लू आ रहा है. So then the motivation went towards this also, कि organic class of materials, can these be used as light sensors? And concurrently, ये शायद जो मैं बोल रहा हूं थोड़ा अजीब जा रहा होगा, बट मैं एक रेफरेंस दे सकता हूं. ऑर्गेनिक मटेरियल्स हम लोगों के आसपास बहुत ज्यादा यूसेज में है, बहुत डोमिनेंट यूसेज में. आपके Yes, sir. मोबाइल फोन का जो स्क्रीन है, हम हमेशा बोलते हैं वो ओलेड टेक्नोलॉजी है. तो ओलेड में ओ इज ऑर्गेनिक एंड एलईडी इज लाइट इमिटिंग डिवाइस या लाइट इमिटिंग डायोड्स भी कह सकते हैं. सो दैट ओ ऑफ ओलेड इज ऑर्गेनिक बिकॉज ऑफ द सेम क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो ये मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे अगर आप ओलेड टाइप डिवाइसेस बनाते हैं एंड इफ दे आर एफिशिएंट इनफ, तो वो व्हेन यू पुट करंट इनटू देम, पुट वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस, so depending upon how the device has been made and the material classification, material specification, वो red specific light, green specific light या blue specific light emit करते हैं. And these are so cheap to make, and power efficiency भी comparable है to the previous technology, LCDs वगैरह जो थी पहले. Plus ये flexible भी हैं, flexible हो सकते हैं. Hence Samsung फ्लेक्सिबल स्क्रीन मोबाइल फोन निकाला कुछ साल पहले, एंड अब आई थिंक गूगल पिक्सल ऑल्सो हैज अ न्यू वर्जन जिसमें वो फोल्ड हो जाता है स्क्रीन. सो दैट स्क्रीन फोल्डिंग इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर बीइंग यूज्ड, एंड वो चीप है फैब्रिकेशन के लिए, एंड उनसे बने डिवाइसेस यू कैन बेंड देम ऑल्सो. वो और डिटेल्स हैं पर उसमें नहीं जाते हैं, बट हम फोन्स यूज कर रहे हैं, हमको पता है ये सब चीजें हो रही हैं, एंड द कोर thing in that is the organic material. तो स्क्रीन में करंट डालते हैं, वो लाइट निकालता है. मैं उसके रिवर्स अप्रोच पे वर्क करता हूं. आई मेक लाइट सेंसर की लाइट डाले और वो कॉरेस्पॉन्डिंग करंट निकले, एंड टू यूज देम. दिस वाज पीएचडी. तो जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय पीएचडी आई न्यू प्रोफेसर कैरोलिन मोरावस्की, क्योंकि वो ओलेट्स पे वर्क कर रही थी और उनके मैंने कई पेपर्स पढ़े थे. तो मैंने उनको ईमेल लिखा था कि आई हैव रेड योर वर्क, इट हैज बीन ऑफ माय हेल्प बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक क्लास ऑफ मटेरियल्स. एंड उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि शी हैज नाउ स्टार्टेड अ न्यू रिसर्च वर्क जिसमें वो ओलेड डिवाइसेस यूज करेंगी जो लाइट एमिट करता है, टू थ्रो दैट लाइट ऑन न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स जो कि पेट्री डिश पे होंगे. एंड न्यूरॉन्स या नर्व सेल जब वो लाइट रिसीव करेंगे, दे विल गेट एक्टिवेटेड थ्रू ऑप्टोजेनेटिक्स टेक्नोलॉजी. वो एक अलग टॉपिक है, उसको भी साइड कर देते हैं, बट अब तक के लिए इतना ही कह देते हैं कि एक नर्व पे अगर न्यूरॉन आ गया, देन सच अ टाइप ऑफ नर्व गेट्स ट्रिगर्ड, वो सिग्नल आगे के नर्व्स को दे सकता है. एंड अगर इस पेट्री डिश में देयर इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स और न्यूरॉन्स, न्यूरोनल नेटवर्क, तो सिग्नल्स कम्युनिकेट कर रहे हैं वो पूरे नेटवर्क में. एंड इफ स्पेसिफिक नर्व्स कैन फ्लोरेस, if they can give out light upon receiving that signal, the synapses, the nerve signal, the neuronal signal, और वो फ्लोरेस करें, अगर वो लाइट एमिट करें, then it is the duty of my organic light sensor to pick that light, कि लाइट आ रही है नहीं. एंड ये हुआ नहीं था. तो मेरे को लगा कि यार ये जो मेरा एरिया था पीएचडी का, उसका तो एक एप्लीकेशन दिख रहा है. above all काफी चैलेंजिंग दिख रहा है, बिकॉज आई नॉट ओनली हैव टू मेक एन ऑर्गेनिक फोटोडायोड जो कि बायो कंपेटेबल हो, बल्कि वो इतनी फेंट इंटेंसिटी फ्रॉम अ न्यूरॉन उसको भी पिक करे. तो मेरे लाइट सेंसर की एबिलिटी उतनी होनी चाहिए. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट तो नहीं कहूंगा बिकॉज आई हैव गिवन अ लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, बट ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो मेरा पीएचडी का मेन टॉपिक था, उसका स्टार्ट कहां था वो एक सेंस दिया. एंड अभी जो मेरा वर्क है वो
I think I've given us very simple language what it is about. Yes, sir. Coming from biotechnology background, it's still clear to me कि वो Okay, कैसे फॉर्म हुआ है. okay. Yes, मेरे को sir. पता है मैंने 11th 12th में बायोटेक्नोलॉजी ली थी बिकॉज आई हेटेड बायोलॉजी honestly speaking. And I'll tell Yes, you, my sir. hate is probably an extreme word. I'll accept it. But 10th में जब बायोलॉजी के लिए हमको 10th के लिए पढ़ना था तो वो साइंटिफिक नेम्स आ रहे थे एंड आई रियलाइज कि ये 20-30 साइंटिफिक नेम बस रट्टे मारी जाओ एंड क्या इसका फायदा है वो बस बोर्ड्स में पूछ लेगा कि इसको क्या कहते हैं और मेरे को एक ही नाम अभी तक याद है कि आम को साइंटिफिक लैंग्वेज में मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं उसके अलावा मेरे को और Yes, कुछ sir. याद नहीं है तो जब 11th में आए तो बायोलॉजी तो फेंक दी एंड एक बायोटेक्नोलॉजी तो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था एंड आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग एंड मैंने बायोटेक्नोलॉजी पिक करी थी 11th 12th में एंड उसके बाद मेरा lucky that वो biotech मैंने तब pick करी because now when certain things about how optogenetics, how the gene modification happens, how the protein क्या कहते हैं translation and उसका expression, the expression of that protein within the neurons वो कैसे होता है now it is much more easier for me to understand क्योंकि वो सब 11th 12th में एक basics cover कर लिया था. Okay, actually, I was going to ask you the same question कि coming from mechanical background and then neurons के ऊपर तो वो चीज कैसे adjust कर रहे हैं आप because neurons की study के लिए आपको और फिर ये genetics वाला part थोड़ा सा bio की knowledge होनी होती है नहीं तो वो चीज समझ में ही नहीं आएगी हमें. That was हाँ. And the thing is कि एक्चुअली रिसर्च में ऐसा होता है कि it is called research because you are searching something and if you search once you may not find you try to search again and again then that is why it is called research. So because it is searching for something means कि कुछ चीजें आपको पता नहीं होंगी आप तभी तो उसको ढूंढना कहते हैं फिर तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि मैं आज भी लाइब्रेरी में चले जाता हूँ कहीं वो बेसिक्स की बुक उठाता हूँ एंड बल्कि आई थिंक ड्यूरिंग माई पीएचडी एक पॉइंट था जब मैंने 11th या 12th की कोई मैथ्स की बुक मैंने निकाली थी क्योंकि कुछ इक्वेशंस मेरे डेटा से फिट नहीं बैठ रही थी तो वो बुक्स वापस ले जाना था ओ अबव ऑल मैकेनिकल करने के बाद पीएचडी में व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन लाइट सेंसर्स इट इज अबाउट हाउ इंसिडेंट फोटोन कन्वर्ट्स टू फ्री चार्जेस जो कि आप एक्सट्रैक्ट करते हो इलेक्ट्रोड्स पे तो फिजिक्स कम्स इनटू प्ले एंड मेरा फिजिक्स था ही नहीं बैचलर्स में तो बड़ा ऑब्वियस हो जाता है कि अब भैया पीएचडी करनी है और ये चीजें समझनी है तो लाइब्रेरी जाके बुक्स खोलो नहीं तो आप अपने साथ मजाक कर रहे हो किस फील्ड में हो और रिसर्च कर रहे हो तो वो एक कुछ जगह थोड़ा बहुत पहले का पढ़ा फायदा दे देता है एंड अगर नहीं हो गरीब हो उस एरिया में नॉलेज नहीं है तो गरीब मान लो अपने आप को और लाइब्रेरी चले जाओ और पढ़ो तो वो तो पार्ट एंड पार्सल है ये बेसिकली एक्सप्लेन कि क्यों हमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में इतनी डिटेल में पढ़ाए गए थे टेक इट स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर नैनोटेक नॉट इट वाज केमिस्ट्री ऑर्गेनिक एज वेल इनऑर्गेनिक देन फिजिकल केमिस्ट्री एट द टाइम वी वर लाइक we don't want to study these subjects they have nothing to do with our field but now I get it why these all parts are important हो जाता है you will never know future looking into the future you will never know how the dots will connect yes for obvious reasons and now we have youth so you can explain us क्यों पढ़े हमने वो नहीं यहाँ पे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा आपकी लाइफ का अपना खुद का होगा यू विल हैव टू फाइंड इट योरसेल्फ मेरे को खुद नहीं पता कि कई चीजें जो मैंने की हैं वो आगे जाके कब फायदा देंगी ना भी दे Yes, sir. And integration derivation, the part of calculus that we always say कि real life में तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा वो हमारे It's always addition, subtraction, and multiplication, division. After that, calculus is something कि पढ़ा और books close, it's over.
So is it something that is still helping you out in your field, or आपके लिए भी chapter close? कुछ चीजों के लिए हाँ, मेरे को लगता है कि वंस अ थिंग हैज हैपेंड एंड अगर मैं कभी अकेले में बैठ के सोचता हूँ तो माइंड है, क्यूरियस माइंड है, तो कनेक्टिंग द डॉट्स तो करता है। तो लुकिंग बैक आई कैन कनेक्ट द डॉट्स कि वहां तब वो पड़ा था तो उसका फायदा यहाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया। तो ऐसा है। अब ये है। एंड अगर इस मोमेंट पे अगर कुछ नहीं पता है तो इमिडिएटली एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि नहीं पता। उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि दिखावे में ना ही जाऊं। एंड अगर नहीं पता है तो एक्नॉलेज कर लूंगा कि ये नहीं आता। एंड नहीं आता तो वो एक्सेप्टेंस हो गया। मीन्स अब आना चाहिए। यस। अब क्या करें? जाओ और पढ़ो। अब कहाँ से पढ़ो? ऑनलाइन रिसर्च पेपर्स, लाइब्रेरी का बुक्स, अलग अलग तरीके हैं। बट देन दिस इज ट्रू फॉर रिसर्च प्रोफेशन में। मुझे पता नहीं कि किसी को बिजनेस शुरू करना हो या कुछ और चीज करनी हो तो उसके लिए सब चीजें शायद उतनी पता नहीं आए या ना आए। वो इसलिए सब्जेक्टिव है। पर्सन टू पर्सन लाइफ डिफर करती है। Yes, sir. आंसर यू सेट कि 2022 में आपने रिसर्च पे काम कर रहे थे ड्यूरिंग दैट पीरियड दैट वाज एक्चुअली पेंडेमिक कोविड-19 इफ आई एम राइट. So like उस टाइम पे laboratories were shut down especially in Europe because it was a high time to be precautionary because at that time there were no vaccination as well. So did it affect your research work and like work from home laboratories नहीं थी, so how that went कि continue रही चीजें? मैं 2000 2020 में ऑफिशियली पेंडेमिक डिक्लेयर हुआ था। मैं उस समय ऑस्ट्रेलिया में था, ब्रिस्बेन सिटी। एक्चुअली ब्रिस्बेन के सब कहते तो सबर्ब हैं, बट आउटसाइड इंडिया पता चलता है कि 2-3 किलोमीटर रेडियस के बाहर की सिटी को वो सबर्ब कह देते हैं, और इंडिया में रह के 2-3 किलोमीटर के बाद भी लगता है वो सिटी में ही है। तो वो सबर्ब नहीं था हमारा यूनिवर्सिटी, वो प्रेटी मच विद इन द ब्रिस्बेन सिटी था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में था एंड काफी थ्राइविंग यूनिवर्सिटी कैंपस है वो। बहुत आई ऑलवेज थैंक्ड द फोर्सेस अराउंड मी कि मेरा पीएचडी एक ऐसी यूनिवर्सिटी कैंपस में हुआ, क्योंकि डिपार्टमेंट के बाहर जो नेचुरल ट्रीज, लेक, रिवर काफी अच्छा था। और मेरे को नेचुरल ब्यूटी काफी पसंद है कि एक बार काम हो गया तो शाम को नदी किनारे बैठ जाओ, लेक किनारे बैठ जाओ। एंड कुछ एनिमल्स, बर्ड्स भी अच्छे थे वहां पे, डक्स, बर्ड्स, कुछ रेप्टाइल्स भी थे। एक उनका कुछ एक अलग से एक रेप्टाइल है वो लंबा सा, और वो बड़ा, ऑस्ट्रेलिया काफी वियर्ड है इस मामले में। स्पाइडर्स होंगे प्रॉब्लम नहीं है, रेप्टाइल्स होगा प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो बर्ड्स होती है ना, ये फ्लाई करके आपके हेड पे स्वूप करती हैं और अपनी बीक्स हिट करती हैं। तो जब हम साइकिलिंग करने जाते थे तो हेलमेट के ऊपर ना ऐसे पॉइंटेड स्पाइक्स रखते थे ताकि बर्ड्स हिट ना करें। एनीवे, द पॉइंट इज कि कैंपस मेरे को अच्छा मिल गया था इन द सेंस कि डिपार्टमेंट से बाहर निकले, बैठ सकते हो, नेचर देख लो, रिलैक्स हो जाओ, वापस आ सकते हैं। प्लस ये तो पॉइंट वन। सेकेंड पॉइंट इज कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम है, तो इंडिया में डेंसिटी ज्यादा है। तो पेंडेमिक जिस तरह था स्टेटिस्टिकली, वो उधर ही सबसे ज्यादा स्प्रेड होना था जहां पे ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, और मतलब डेंसिटी जहां ज्यादा है। तो ऑस्ट्रेलिया उस मामले में सेफ है। और ऑस्ट्रेलिया में एक चीज ऐसा है कि आप अगर अभी भी गिनोगे ना तो मेजर सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया 10 का काउंट क्रॉस नहीं कर पाओगे। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, डार्विन, कैनबेरा, एडिलेड, बाकी छुटपुट छुटपुट टाउन्स होंगे। और इन सब टाउन्स में डिस्टेंस मोर देन 300 किलोमीटर्स का है। 300 किलोमीटर इज ऑलमोस्ट, दिल्ली से निकले तो लुधियाना पहुंच गए अगर पंजाब की तरफ जाओ। मतलब इतने इतने डिस्टेंस तो खाली है, कुछ नहीं है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब पेंडेमिक हुआ एंड लॉकडाउन शुरू हुए तो एसेंशियली कुछ भी नहीं है। आपने लॉकडाउन कह दिया तो मतलब पहले ही लोग नहीं थे सिटी में, अब आपने लॉकडाउन कह दिया तो लोग ही नहीं आ रहे हैं अब तो। और उसमें
यूनिवर्सिटी काफी बैरन सा दिखने लग गया था. तो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी वाज सच कि they had a chain of command, and down to the last person who is working in the lab, उन सबका ओपिनियंस लिया गया था. एंड ऐसा था कि इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्सपेरिमेंटल फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जैसे सैटेलाइट ने डेटा ले लिया तो वो स्टूडेंट को मिल गया तो वो घर बैठे बैठे उन पे एनालाइज कर सकते हैं. कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जैसे ओशियानोग्राफी का जो है वो लोग फील्ड ड्यूटी पे जाते हैं. फॉर देम द फील्ड इज कि ओशियन में चले गए और डॉल्फिन्स देख रहे हैं. तो वहां तो ऑब्वियसली आपको एक आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मिली गई है. तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते कि नहीं वो फिजिकल लैब में ही होगा, वो डिपार्टमेंट के उस लैब में होगा और आप उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो वही ही है वो. तो Yes, sir. ऐसे लोगों के लिए एक्सेप्टेड था आना. लेकिन आप बता दीजिए कब कब आएंगे, आपका सुपरवाइजर आपको बताएगा. एंड एक चीज इंश्योर ये रखी गई थी क्योंकि लैब है तो सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं. तो पीएचडी स्टूडेंट अगर रिसर्च वर्क कर रहा है तो उसके साथ एक पोस्ट डॉक्टोरल पर्सन तो होना चाहिए. पोस्ट डॉक्टोरल इज अ पर्सन हु इज डन पीएचडी बट अभी प्रोफेसर नहीं बने. एंड प्रोफेसर पोजीशंस अराउंड द वर्ल्ड इन क्रेडिबल यूनिवर्सिटीज, इन द क्रेडिबल यूनिवर्सिटीज इतनी ज्यादा नहीं है. तो यू हैव लॉट ऑफ पीएचडीज ग्रेजुएटिंग बट नॉट एज मेनी प्रोफेसर्स. सो द ट्रेंड हैज बीन कि ये लोगों को पोस्ट डॉक बोल देता है. अलग अलग कंट्रीज में इनके अलग अलग नाम, पोजीशंस का नाम अलग अलग होता है. बट पोस्ट डॉक्टोरल बेसिकली इज द सेंस हु इज पोस्ट डॉक्टोरल स्टडीज, पोस्ट पीएचडी स्टडीज. तो पोस्ट डॉक के साथ अगर आप हैं तो ठीक है, दो लोग हैं लैब में, कुछ मिस हैपनिंग होती है. यू आर वर्किंग विद हाई टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशंस, एक्सट्रीम वोल्टेज कंडीशंस, कुछ भी अब नॉर्मेलिटी होती है तो दूसरा तो हो साथ में. अकेले होने पे स्टक हो जाए तो प्रॉब्लम होती है, लैब हैजर्ड्स होते हैं. तो दिस केम इनटू पिक्चर. तो ये था कि मेरे एक्सपेरिमेंट्स जीरो तो नहीं हुए थे, तो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे. प्रॉब्लम कहाँ हुआ था कि my research work during first 2 years I had developed it into an international, um, ये थोड़ा डीप साउंड होगा बट इट इज वेरी नॉर्मल इन रिसर्च कि आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपको उस पर एक्सपर्टीज नहीं होगा. आपको जो चीज चाहिए वो शायद किसी और ग्रुप के पास होगा और वो ग्रुप शायद आपकी सिटी में ना हो, आपके कंट्री में ना हो, किसी और कंट्री में होगा. तो आप ये इस तरह की एक्सचेंजेस करते हैं, इसको कोलैबोरेशन कहते हैं. गेटिंग द बेस्ट टू बी रिक्वायर्ड इन अ वर्क, और जहां से भी वो मिल रहा है. तो मेरा इस तरह का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन था. पेंडेमिक होते क्या हुआ कि दूसरे कंट्री में जिन्होंने वो चीज जो बनानी थी या भेजनी थी वो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि उधर लॉकडाउन स्ट्रिक्ट था. और अगर जब उनका लॉकडाउन रिलीज होता था तो जब वो पोस्ट करते थे तो वो लॉजिस्टिक्स में अटक जाता था. सिंगापुर अटक जाएगा क्योंकि सिंगापुर कहता था कि हम हफ्ते में सिर्फ एक दिन चलाएंगे. सबके लेजिटिमेट रीजन है. दैट वाज द टाइम पेंडेमिक में. या मैंने कुछ डेटा एनालाइज कर दिया है, मेरा जो डिवाइस बनाया है वो हो गया, वो एक्सरे स्कैटरिंग के लिए कहीं जाएगा तो वहां सिंक्रोट्रॉन बंद है क्योंकि सिंक्रोट्रॉन जिस सिटी में चलेगा वहां वहां पे लॉकडाउन चल रहा है. तो कोऑर्डिनेशन बहुत डिफिकल्ट हो गया था, डिलेज हो गई थी. आप एक मटेरियल जिस फैक्ट्री में बन रहा है तो आप उससे बात कर रहे हो कि हमको और चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही है. तो इंटरनेशनल लेवल पे काफी हिकअप्स आने लग गए थे. तो मेरे दो प्रोजेक्ट्स मेरे को अभी ध्यान है कि एट द लीस्ट मेरे दो प्रोजेक्ट्स तो इमीडिएटली मेरे को तो क्रैश डाउन होते दिखे थे. एंड द बेस्ट सोल्यूशन, तो वो एक टफ टाइम हो गया था. इट वॉज अ हार्ड डिसीजन कि अब क्या किया जाए. तो दिस इज 2020 एंड 2021. एंड समवेयर इन 2020 जिस तरह डिलेज आ रही थी तो इंट्रोस्पेक्ट करके आई थॉट ऑफ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पिक करूं जो मेरे लैब में मैं बना पाऊं, मेरे को और किसी की जरूरत ना लेनी पड़े. तो अपना इंट्रोस्पेक्ट किया, अपने जो स्किल हैं देखा कि क्या क्या मैं बेस्ट कर सकता हूं. एंड यू हैव टू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑल्सो.
कुछ एक ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज कि वो अपनी खुद की लैब में करना है तो मतलब पानी उठाओ चीनी मिलाओ और कह दो कि हाँ मैंने जी मीठा पानी बनाया ऐसा कुछ इट्स अ वेरी बैड एग्जांपल बट इट कैनॉट बी जस्ट एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ इट तो वो था देन आई हैड अ चैट विद माय सुपरवाइजर एंड माय सुपरवाइजर टोटली अंडरस्टूड द सिचुएशन उन्होंने पूरी मेरी सपोर्ट करी थी ये सिचुएशन समझने में एक पॉइंट के बाद काफी बॉन्ड अच्छा हो जाता है सुपरवाइजर और स्टूडेंट के बीच में तो ही वाज डेफिनेटली हेल्पफुल तो दिस वाज 2022 तक पीएचडी 2021 तक मेरा पीएचडी हो गया था एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2021 और पेंडेमिक लॉकडाउन अराउंड द वर्ल्ड चल ही रहा था ऑस्ट्रेलिया ने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग काफी स्ट्रिक्ट की हुई थी यस सर तो हमारा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग था नहीं टुवर्ड्स द एंड ऑफ पीएचडी मैंने ईमेल्स करी थी अराउंड द वर्ल्ड कि इस तरह मेरा पीएचडी थीसिस सबमिशन पे है एंड मेरे को कुछ जब 4 साल आपने लगा लियो पीएचडी में तो आपको पता चल जाता है कि किस किस एरिया में काम अच्छा है किन किन लोगों का एंड आपकी खुद की इंक्लिनेशन बन जाती है कुछ लोगों के प्रति कि आपको पता चलता है यार ये पर्सन काफी मेटिकुलस है इनके पास जाएंगे तो बहुत सीखने को मिलेगा ऐसे कई लोगों को मैंने किया था एंड बाय द टाइम प्रोफेसर कैरोलिन मोरावस्की एक्सेप्टेड मी ऑफिशियली वो लेटर आया एंड इट इज कोइंसिडेंटल कि जब तक मैं ऑस्ट्रेलिया से निकल रहा था towards the first few two months, first 1 or 2 months of 2022, Jan Feb के अराउंड तब इंटरनेशनल ट्रैवलिंग धीरे धीरे खुल रही थी तो प्रॉब्लम नहीं था तो मेरे को ये पता है कि जब मैं जर्मनी लैंड हुआ हूं तब ये लोग भी वापस इंस्टीट्यूट्स में आना शुरू कर रहे थे वो रिवाइवल हो रहा था वापस वो सिचुएशन समझ रहे थे कि उस समय ये भी था शायद कॉर्पोरेट में कि वर्क फ्रॉम होम अभी हटा दें या रखें ये डिस्कशंस थी उस पॉइंट पे तो तब तक आई थिंक बाय द टाइम आई वाज इन जर्मनी pandemic related lockdowns were not affecting much वो impact pandemic happened right in the middle of my PhD and मेरे thesis के कुछ दो major projects उसने jeopardize but that was the reality of that time so you dropped those so the projects that were being delayed तो आपने उनको ड्रॉप कर दिया था या you somehow wind that up कि खत्म कर दिया इस वाले को वो ड्रॉप ही होने थे बिकॉज इट वाज नॉट ऐसा था कि लाइक आई सेड इट्स अ रिसर्च यू हैव टू मेक एंड इफ यू डोंट फाइंड इट वंस देन अटेम्प्ट अगेन एंड यू कीप ऑन ट्राइंग तो with trying I don't want to give a sense कि जबरदस्ती एक आंसर निकालो you have a theory कि ये इस तरीके से वर्क करेगा and maybe आपका जो theory है वो रिजल्ट वैसा नहीं आया fine that is the reality maybe you have a second theory maybe you have a third theory or you modify the thing a bit so these are different attempts to understand and in each attempt you learn ये हो रहा है या नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है तो मतलब that theory what you had was wrong or the way the device is behaving it's a new behavior and you have no theory for it and you develop an understanding कि ये कैसे हो रहा है तो you'll have to तो ऐसा नहीं है कि एक मटेरियल आया आपके पास एंड आपने एक डिवाइस बना लिया एंड डिवाइस बना लिया और वो हो गया ऐसा नहीं होता है बिकॉज इट्स अननोन तो आप फर्स्ट टाइम देखते वो डेटा बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है और आपको भी नहीं समझ में आ रहा है फर्स्ट टाइम तो बन रहा है सब तो समझना पड़ता है कि ये कैसे बिहेव कर रहा है उसके लिए बहुत बार वो डिवाइसेस बनानी पड़ती हैं लेकिन बहुत बार डिवाइसेस बनानी पड़ती है तो उतना मटेरियल भी होना चाहिए एंड इफ द मटेरियल इज नॉट अवेलेबल यू कैन नॉट मेक डिवाइसेस तो इन वन पर्टिकुलर केस द फैक्ट्री हैड स्टॉप वर्किंग वो चल ही नहीं रहा था वहां पे एंड दे हैड बैकलॉग था उनके पास मटेरियल्स का दैट प्लस विद इन जो लैब्स थी उनमें कोऑर्डिनेशन हो रहा था कि इस दिन हम आएंगे तो उस दिन आप आओगे सेकेंड डे दोस्त
few people are coming, the third day those people are coming. So the frequency of visiting lab had reduced. प्लस एक टोटली डिफरेंट ग्रुप वहां से जिन्होंने डिवाइसेस बनानी थी, देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ फैब्रिकेटिंग डिवाइसेस हैड कोलैप्स्ड. आई थिंक फॉर 1.5 months स्ट्रेट वो डिवाइस ही नहीं बनी. एंड व्हेन दे केम, तो डिलीवरी लॉजिस्टिक्स पे रुक गई. 2 times in logistics it got delayed, and because of that we don't know where that devices were stored in, and what we got was a totally different data compared to जब वहां जहां से वो डिवाइस बन रही थी उन्होंने जो डेटा मेजर किया था, एंड कुछ 2 हफ्ते बाद जब तक हमारे पास पहुंचा तो हमने जो मेजर किया उसमें बहुत ही डिफरेंस, और ये पहले कभी देखा ही नहीं. तो वो लॉजिस्टिक्स में ही कहीं कुछ इशू हुआ है. अब ये इसमें कौन जाए? तो लॉजिस्टिक्स में तो कुछ भी हो सकता है. तो या तो हम नॉन पेंडेमिक टाइम होता तो हायर प्रायोरिटी लॉजिस्टिक्स करते कि मंडे भेजा तो वेडनेसडे तक मिल जाता बेटर. वो पॉसिबिलिटीज नहीं थी. एंड देयर वर सर्टेन अदर फैसिलिटीज जहां पे कुछ डिवाइसेस देनी थी मेजरमेंट के लिए. दे वर जस्ट क्लियर कि ये 3 महीने तक 4 महीने तक हो नहीं सकता है. तो मैं 3-4 महीने पे तो तब पहुंचू कि मेरे डिवाइसेस बन गई, उनका मेजर हो गया एंड ये सारा लाइन सही से चल रहा हो. तो ultimately the option was कि instead of you don't have control on other factors कि बाकी कंट्री में क्या हो रहा है. उस टाइम पे मेरे को एक रियलिटी समझ में आ गई थी. आई हैव कंट्रोल ऑन माय लैब, मेरे को वो पता है, एंड माय सिस्टम इज हेल्पिंग मी, मेरे को ये पता है. तो लेट मी कट द अदर फैक्टर्स आउट एंड सिर्फ अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रहूं. मैं ये नहीं कहूंगा कि ये डिसीजन सही था. उस समय मेरे लिए वो बेस्ट डिसीजन था. किसी और के लिए शायद कंटिन्यू करना ही बेटर होता. डिसीजंस तो पर्सनल लेवल पे ही डिसाइड हो पाता है कि ठीक है ये वाला बेटर है, तो दैट्स गुड. इट मस्ट हैव बीन अ टफ टाइम फॉर यू कि प्रोजेक्ट को मिडवे से ड्रॉप करना, फॉर श्योर. एंड सर लाइक यू मेंशन कि जैसे ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी, ये ट्रांजिशन आपका कोविड के टाइम पर ही आया था. बट ओवरऑल भी देखा जाए तो दीज कंट्रीज हैव कटिंग एज टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू इंडिया. एंड दो स्टूडेंट्स, उनका जो kind of aptitude है when it comes to proper technology, that's better as compared to us presently. If I talk about my friends who are there studying, actually I have a few friends in Australia as well. So what they are studying and what we are studying, there's a tragic difference between both of these. तो क्या करिकुलम का डिफरेंस आ जाता है कि टेक्नोलॉजी में ही, या समथिंग एल्स? आई थिंक ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एंड नोइंग अननोइंगली टाइम टू टाइम ये टॉपिक कहीं ना कहीं हमारे सर्कल्स में डिस्कस हो ही जाता है. इंडिया इज डेफिनेटली नॉट अ कंट्री दैट पीपल अराउंड द वर्ल्ड विल इग्नोर. एक साइजेबल पॉपुलेशन है, एक साइजेबल कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड को. आप डेली बेसिस पे गूगल तो टच कर ही लेते हो, माइक्रोसॉफ्ट टच कर ही लेते हो. तो इंडियन कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड्स हैपनिंग्स इग्नोर तो नहीं कोई कर सकता. क्यों ऐसा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की टॉपिक पे. फनी एनफ, इंडिया से नोबेल प्राइज विनर्स तो हैं, बट वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके वर्क करते हैं, ये भी एक रियलिटी है. इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम. सी अराउंड आउटसाइड मैं कुछ फैक्ट्स बता सकता हूँ. कुछ चीजें हैं जो शायद जिनको रिकॉर्ड पे मेरे को तो नहीं पता कि वो रिकॉर्ड पे है या डेटा स्टेटिस्टिक्स उन पे है या नहीं, शायद होम भी, बट जो मुझे पता है मैं वो बता सकता हूँ कि आउटसाइड इंडिया द अमाउंट ऑफ फंडिंग पोर्ड इन वो काफी हाई है. बट इन लास्ट 7-8 years में सिंस 2018-19 तो मैं देख रहा हूं कि डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स इन इंडिया उनको पैसा मिल रहा है. बट देन वन कैन पुट अ क्वेश्चन कि पैसा मिलने से ही क्या रिसर्च अच्छी होती है? ऐसा वो भी जरूरी नहीं है. एग्जैक्टली. एंड कुछ और चीजें मैंने ये भी देखी हैं कि
इंडिया में गवर्नमेंट फंडिंग बेसिस पे ही रिसर्च चलती है, बल्कि जर्मनी में जैसे कि सॉर्ट ऑफ इनएविटेबल है कि प्राइवेट कंपनीज रिसर्च में कंट्रीब्यूट ना करें. Sorry, it is very inevitable कि the private companies will contribute to the research. उनको कुछ चाहिए होगा, कुछ नई चीज, and they straight away know that they'll have to provide some research finances, some financial impetus to research on that particular topic in a particular university. And फिर उस यूनिवर्सिटी में the specific group will work on it. तो द ग्रुप को भी पता चल जाता है कि रियल लाइफ ऑन ग्राउंड क्वेश्चंस क्या हैं और उन पे वर्क कैसे करना है. अभी मैं जर्मनी में बैठा हूं तो मेरे को भी हैरानगी होती है कि मुझे कुछ भी चाहिए होता है, ले दे के वो जर्मन कंपनी निकल ही आती है. एंड दे वेरी मच अप टू डेट कि आपको रिसर्च में इस टाइप का लाइट चाहिए या इस टाइप का कोई बायोलॉजिकल चीज चाहिए, वो ले दे के वो जर्मनी में मिल ही जाती है. तो दे आर वेरी मच टू द कंटेम्प्रेरी नीड ऑफ द कस्टमर. जो लास्ट एंड पे जो पर्सन की रिक्वायरमेंट है, उस वो जो नया चाह रहा है, वो क्वेश्चन यहाँ की कंपनीज को इमीडिएटली पता होता है कस्टमर डिमांड किस जगह जा रही है. एंड वो उसको ढूंढने के लिए, उसको सर्व करने के लिए जो नया प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए जो रिसर्च क्रिएटिविटी चाहिए, उसके लिए वो सीधे यूनिवर्सिटी पे जाते हैं. एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अंडर द प्रोफेसर और द पोस्ट डॉक या जो भी रिसर्च ग्रुप का हेड है, ग्रुप लीडर है, उनके साथ फिर वो कंपनी वाले क्वेश्चंस को सर्व करने के लिए दे कम अप विद क्रिएटिव सोल्यूशन एंड देन दैट बिकम्स अ प्रोडक्ट. तो प्राइवेट कंपनीज का इनपुट टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन काफी हाई है जर्मनी का, इन माय एक्सपीरियंस. ऑस्ट्रेलिया तो काफी लेस पॉपुलेशन है, 25 million for entire Australia, which is what, one Delhi or one Bombay. तो Yes, sir. मतलब one Delhi population spread over a land much bigger than India. तो कितनी less population density है. And Australia has a lot of mines. उनकी GDP per capita is very high. They can put money. वहां पे से government support भी जाए तो things can work. तो एक चीज जो मुझे लगता है कि एटलीस्ट इंडिया में दैट कैन हैपन इज द प्राइवेट कंपनीज कैन कम इन कि हमको ये कुछ नया चाहिए, तो ये हम यूनिवर्सिटीज में इनके साथ रिसर्च वगैरह करें. एंड अगर आप नोटिस भी करोगे ना इंडिया में, टिपिकली मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छी यूनिवर्सिटीज में यही माहौल है, बट आस्क एन एवरेज जो इन इंडिया और बैचलर्स मास्टर्स कर रहे हो, जिसको इंडिया के बाहर का ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, फाइन, बट उनकी डेफिनेशन ये होगी दैट अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी मतलब वो लेक्चरर है, वो सिर्फ पढ़ाएगा, सिलेबस खत्म करेगा, कुछ नया. और आउटसाइड इंडिया जैसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, साउथ कोरिया वाज इकोनॉमिकली व्हाट in compared to India during 60s and 50s, and look at now, highly advanced and research intensive. In जगह US, Israel, UK, there's so many countries. Singapore also. What was Singapore in 50s and 60s, and what is it now? तो यहाँ पे अगर प्रोफेसर इज नॉट जस्ट अ लेक्चरर कि हर सेमेस्टर में एक सिलेबस आ गया तो प्रोफेसर अपना सब्जेक्ट पूरा कराएगा, ऐसा नहीं है. Professor basically is related to essentially a person who would be heading, who is related to a research area or a particular domain of research, has own group and is working on it and trying to find answers for the research topic he or she is on. उससे वो related है, and based on the findings फिर वो students को subjects पढ़ाते हैं. तो quite opposite sense है. I may be wrong in my interpretation of India, but this is based on my experience. कि मैं जब प्रोफेसर बोलता हूँ इंडिया में, अच्छा वो लेक्चर आ रही है, वो तो बस पढ़ाएगा, मतलब हाँ जी तो मैं सर. बस ओके करके आ जाता हूँ. Yes, sir. We have a different concept. कि researcher is only for research, and the professor is only for the lectures. And these are two very different fields here. So there is. And इसीलिए मेरे को लगता है कि ना
एक माहौल ही शायद एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ऐसा माहौल इतना ओके ऐसा तो नहीं कहना चाहिए कि इतना नहीं है बट एट द लीस्ट जितना होना चाहिए उससे तो बहुत ही लो है कंपैरेटिवली कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माहौल हो जी सर। सिर्फ ज्ञान अर्पण नहीं हो रहा है इट्स एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन उसको एक एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग जोन में लेके जाना उतना तो इंटेंस नहीं है यस सर। And the thing you said कि there are fundings in Germany कि companies funds करती है for their topics. Actually in India also there's a hackathon these days. Government ही conduct करवाते हैं. They gives a problem statement और फिर उसके ऊपर solution बनाते हैं students. They have their own PPTs. If they get selected, then they have the prototype. For the prototype also there are fundings. So this is also being run by the ESL University. So this year we had a huge number of students participating. I think that is something we are also being influenced from Europe. maybe but I think India's need is also there Yes. And so actually you were also a professor for 2 years in a university and then you shifted to research. Like, what were the reasons कि आपने academic that is considered to be a very safe profession in India and you went for PhD abroad? So, like, what was the reason, the driving force basically, if I get it more precise? एक्चुअली प्रोफेसर गलत वर्ड है असिस्टेंट प्रोफेसर ठीक है Yes, sir. एंड इंटेंट तो मेरा रिसर्च ही था ऑलवेज परहैप्स मेरी मास्टर्स खत्म होने के बाद आई वाज इन एरोस्पेस लेबोरेटरीज उसमें भी देयर वाज अ स्पेसिफिक डिवीजन नैनो मटेरियल्स रिसर्च लैब उसमें एक स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स है जिस पे मैं वर्क कर रहा था एंड देयर वाज बट देन the atmosphere in India, the salaries were very low, and there was a financial need at home. So the honest answer is because of a financial need, I switched to being an assistant professor in an engineering college. And it was NBA accredited, National Board of Accreditation. And having an NBA accreditation in India is very difficult. So it was a very good engineering college. तो वहां पे था while I was there I was applying for PhDs abroad तो doing research was clear and in between lecturer position assistant professor teaching there was no research in this particular engineering college it was just I was teaching three particular subjects and my main intent ultimately was to go for PhD abroad. So that was the reason. It's answer like अब तो आपके पास एक्सपर्टीज है PhD MTech as well as BTech as well. तो is there any suggestion you have for us कि जो अभी हम BTech कर ही रहे हैं कि these are the soft skills and the hard skills we really need to get our hands on and we need to be professional by the time we graduate. Any suggestions or advice, sir? Best is to मैं skill नहीं बताऊंगा. Best is to have two questions and be honest. आप be honest with yourself what you want in life. ये आई Yes, थिंक sir. हर एक पर्सन को अपने आप से एक बार बात कर लेनी चाहिए कि कि बीटेक मैकेनिकल क्यों किया बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों आए बिकॉज एवरीबडी इन इंडिया ड्यूरिंग माय टाइम वाज गोइंग इनटू बीटेक एक माहौल बना हुआ Yes, था sir. तो अब मतलब एक जैसे सचिन तेंदुलकर क्लियर बैटिंग अच्छा अब ये बड़े नाम भी तो हो गए अब बट देन देयर वाज आल्सो अ टाइम नीरज चोपड़ा वाज नॉट फेमस बट Yes, ही sir. वाज क्लियर एट अ सर्टेन पॉइंट कि ये javelin throw I can do it. He sort of had that clarity. If anybody picks up his interview,
Before his Olympic gold medal was what, Tokyo? Tokyo was now, no, this was Paris. Previous was Tokyo. So Tokyo gold medal before, उसके पहले Rio and Tokyo के बीच में, if anybody picks up his interview, he is sort of media wise a no one. But Hmm. interview में he gives a बात, वो बोलेगा नहीं probably कहीं पे भी, but you get a clarity that this chap probably knows what he is going for. He knows. So I feel it is, and until the gold medal, Neeraj Chopra is like anyone. Up, he is gold medal, he is on media. तो हम भी एक mentally project कर लेते हैं hyped up personality. But every guy who has been great was at some point a normal person who got a clarity कि करना क्या है. So the first thing one has to do is be have an introspective talk and be honest कि आप चाहते क्या हो. Simple. Have that conversation. And second thing is, which is another question, in direction of that, suppose आप लोग बीटेक में हो, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बायो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर जो सब्जेक्ट आ रहा है तो एक पूछ लो कि ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इसका फायदा क्या है, नॉट टू डीमीन द सब्जेक्ट बट टू गेट द सेंस ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस. एंड तो आपको आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि आप किस डायरेक्शन में हो और क्यों हो. आपको क्या क्या स्किल्स डेवलप करनी चाहिए वो सब्जेक्टिव पॉइंट है. आई कैन गिव वन एग्जांपल. मैकेनिकल में ड्यूरिंग बीटेक वी वर आस्क्ड टू गेट ड्राफ्टर्स. अभी भी ड्राफ्टर लेके आते हैं क्या बच्चे? Yes, sir. For EGD, तो फॉर ईजीडी, इंजीनियरिंग ड्राइंग engineering एंड drawing ग्राफ, and graphics. Yes, sir. ईडीजी. ओके. तो ड्राफ्टर, पेंसिल, उसमें भी 2H 3H से लेके वो 2B जी. 3B 4B, एंड पेंसिल शार्प करो, वो एकदम एकदम लाइन एकदम शार्प होना चाहिए. एंड मैं हर एग्जाम में सोचता था कि 4 घंटे का ये पेपर है, एक मशीन उन्होंने बोल दिया उसको आप ऐसे बनाओ, उसकी सेक्शनिंग ऐसे करो, फिर एरो भी आपको चाहिए 3:5 के रेशियो में एरो हेड, और फिर वो ऐसे ऐसे उस पर कर दो और वो नीचे करो. और मेरा सिंपल क्वेश्चन था, मैं क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाद में अगर मैं मैकेनिकल जॉब में कहीं चला गया तो कुछ मशीन डिजाइनिंग होगा, देन इट वुड बी इजी फॉर मी टू कम्युनिकेट द डिजाइन टू अनदर पर्सन. But then I had another question that if a company like Suzuki, Ferrari, Porsche, BMW, whatever, even Hero Honda भी ले लो, वो एक चार्ट पेपर की वेट करता रहेगा. यहाँ तो एक व्हील बनाने में 3 घंटा लग रहा है, वहां तो इतने बड़े बड़े कंपोनेंट्स डिजाइन होते हैं, वो सब चार्ट पेपर्स भी हो रहे हैं वो. तो ऑब्वियस है चार्ट पेपर्स पे तो हो नहीं रहे, टाइम तो बदल चुका है, Y2K को हुए भी कितने साल हो चुके हैं. तो कुछ सब तो सॉफ्टवेयर सीखो, अब सॉफ्टवेयर तो है नहीं. So after my BTech, I got hand on. I think after my BTech, I think after my BTech, during my after my masters actually, because masters was in nanotechnology. In the aerospace labs, there was a particular time, and my boss said कि इस पे तुम डिजाइन करो. मैंने बोला बिल्कुल नहीं. I'm not going down that route. I got a software, वो पूरा सॉफ्टवेयर सीखा, एंड आई डिजाइंड उस पे एनालिसिस वगैरह सारी की, 3D मॉडलिंग उस पे बना के. सो द पॉइंट, एंड वो एक सब्जेक्टिव है अंबिका, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज व्हाट स्किल यू नीड, यू विल हैव टू आस्क व्हाट योरसेल्फ, आस्क योरसेल्फ वेयर यू वांट टू गो. एक स्किल for entire BTech electronics, so that entire BTech electronics gets 100% job, ये कहीं equation बैठेगा नहीं. Each one will have their own interest, their own Yes, liking, sir. their own direction, and based on the direction and their mentality and personality, expertise on different areas will work on them. So fundamentally, the better thing would be to ask 2 questions. Be honest with yourself and ask where you want to go. And second thing, en route to that, whatever topics you come across, then ask, why are you doing this? Is it helpful? What is its value? If you don't find its value, don't do it. Yes, sir.
So actually, what I was trying to like get out of this conversation was कि जैसे for a vision, it's for sure एक vision होना चाहिए. But then like you are in research, तो soft skills में मतलब technical knowledge is for sure that is required. But कि soft skills का क्या role रहता है and like these kind of things. सॉफ्ट स्किल्स में आप क्या क्या बोलते हो, जस्ट सो दैट आई वी बोथ आर ऑन कॉमन प्लेटफॉर्म डेफिनेशन? सॉफ्ट स्किल मतलब स्पीकिंग? So like the conversations and formal ways of communication and then keeping things light as well, taking it mailed, everything considered altogether, public speaking. मैं जब आपके लेवल पे था तो आपसे बहुत ही वर्स्ट लेवल की मेरी कम्युनिकेशन स्किल थी. आई वॉज नॉट इवन दिस गुड. यू आर मच 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 बेटर, ऑनेस्टली स्पीकिंग. The point I want to convey is that I was never good in all these soft skills. ये कहीं en route बार बार अपने आप को सिचुएशन में डाल डाल के मैं थोड़ा इम्प्रूव हुआ हूं. इसका इंपॉर्टेंस है. हम ह्यूमंस हैं, सोशल बीइंग्स तो हैं ही हैं. अब प्रोफेशनल जॉब में जाओगे, बॉस से बात करोगे, कोलीग से बात करोगे. रिसर्च में हो तो अपने ग्रुप मेंबर से बात करोगे, इंटरनेशनल जो कोलैबोरेटर्स हैं उनसे बात करोगे. अगर आपको स्टार्टअप बनाना है तो ऑब्वियस है, मतलब आपको you'll have to pitch your own idea to the investors and then to the customers. तो वहां तो सॉफ्ट स्किल्स तो बनती ही हैं. एंड यू नो तो इसके ऊपर फिर आप कौन सा लैंग्वेज आप बोलते हो, फिर उस लैंग्वेज की वोकैबुलरी भी कितनी इंपॉर्टेंट है. मेरा मेरे आई वॉज फॉर सम मंथ्स इन साउथ कोरिया ऑल्सो. अब वहां तो इंग्लिश भी नहीं चलेगी. अब नाउ आई एम इन जर्मनी एंड यहाँ तो यूरोप आके पता चलता है दैट फ्रांस यू टॉक ओनली फ्रेंच. पोलैंड में पोलिश, ओके फाइन, इन सर्टेन बिग सिटीज दे स्टिल टॉक इंग्लिश, बट जर्मनी में तो विदाउट जर्मन तो इट बिकम्स डिफिकल्ट ऑनेस्टली. ऑस्ट्रेलिया लकीली वाज एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, वो तो इट इज स्टिल अंडर द ब्रिटिश क्राउन. तो वहां तो इंग्लिश चलता है. एंड आई थिंक इंडिया में हमने हवा भी बना रखा है इंग्लिश का. अंग्रेज चले गए, एक माहौल छोड़ गए. बट देन उसका फायदा So, ये हो जाता है कि ब्रिटिश ड्यूरिंग देयर बेस्ट डेज वर अराउंड द एंटायर वर्ल्ड. तो इंग्लिश हैज सॉर्ट ऑफ बीन द मोस्ट अमंग्स द मोस्ट स्पोकन. मैंडरिन, स्पेनिश, इंग्लिश, हिंदी. So speaking English is becomes helpful. Most of the MNCs have headquarters in US. तो again an English speaking country, उसका फायदा हो जाता है. So each language comes with its own vocabulary. Vocabulary पता होनी बहुत जरूरी है. अगर आप हिंदी में भी बात कर रहे हैं तो आप कौन से वर्ड्स चूज कर रहे हैं कहाँ पे, वो बहुत मैटर कर जाता है. एक ही बात को अलग अलग सेंटेंसेस में वो डालने से उसके मीनिंग अलग हो जाते हैं, उसका जो एक इम्पैक्ट है वो अलग हो जाता है. आपकी स्पीड से, किस टोन से बोलते हैं, वो भी इम्पैक्ट कर जाता है. फनी अनफ, मैं ये बात कह रहा हूं एंड मैं पिछले कुछ देर से खुद कॉन्शियसली सोच नहीं रहा हूं कि मैं क्या किस तरीके से बोल रहा हूं. तो आई थिंक आई शुड बी मोर अलर्ट ऑन इट. बट दीज थिंग्स हैव एन इम्पैक्ट. हाँ, आई कैन गिव वन एग्जाम्पल. The for approach of sure. writing the approach of writing emails impacts, especially when email is a very major mode of communication these days. WhatsApp is one thing, but professional level pay, the thing that has replaced formal letters is email. And Yes. email में, to get your message crisp and clear in an efficient language, वो बहुत जरूरी है. और कुछ फैंसी यूज ऑफ वर्ड्स भी नहीं. बहुत ही योर्स ओबीडियंटली, द वे दिस विल वर्क विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर द एंटायर कम्युनिटी एंड फॉर द ग्रुप. इतना फेरी टेल भी नहीं. कीप इट टू द पॉइंट, क्रिस्प, क्लियर, रियल रखो. कीप इट फैक्ट बेस्ड. दोज थिंग्स हेल्प.
कुछ ईमेल्स जब आती हैं, फॉर एग्जांपल आप बीटेक में हो, देन आई थिंक मेजॉरिटी वुड वांट टू गो फॉर जॉब एप्लीकेशन, अप्लाइंग फॉर जॉब्स, और फॉर पीएचडी अप्लाइंग टू professors around the world. Or if you're going for startups and pitching your idea to different investors, then having a very short, crisp, clear email is very important, because many of such people you are writing emails to are packed in their day with loads of work. They would not have time to look into your email, because you are, for them, you are one of many who are approaching them. एक प्रोफेसर को हर दिन मोर देन 30-40 ईमेल्स आती होंगी, अब वो सबको रिप्लाई करने बैठा तो मॉर्निंग 7-8 AM अगर अपने टेबल पे बैठा तो लंच तक तो वो रिप्लाई ही कर रहा है, तो वो इग्नोर करना प्रेफर करेगा, ओनली फॉर क्रेम दे क्रेम ऑफ ईमेल्स को वो रिप्लाई करेंगे। तो आपको वो उतने सेकेंड्स में आपका सिग्निफिकेंस कैसे पिक करना है? सो यू हैव टू बी क्लियर कि आई एम अप्लाइंग फॉर दिस, आई एम सो एंड सो with so and so current position. Immediately अपना purpose. I'm writing this email because I find you for so and so जो भी आपका बैकग्राउंड है वो कुछ भी हो सकता है, एंड देन टेल कि आपने क्या किया है, खत्म। लंबा एक पैराग्राफ मत लिखो कि ईमेल देखते ही पहले रीडर को लगे कि ओ ये तो ओवरवेलमिंग हो गया। क्रिस्प हो, क्रिस्प हो गया तो फिर आप पढ़ोगे तो पढ़ के भी सूदिंग लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्यादा ही फेरी टेल लैंग्वेज डाल दिया, खाने में ज्यादा मीठा हो जाए तो खाना भी नहीं खाया जाता, तो एक वो अच्छा। एक्सेप्टेबल वर्ड्स होने चाहिए उसके अंदर। एंड बाय द एंड ऑफ द ईमेल रीडर को लगे कि दिस गाय हैज क्लैरिटी, कि ये पर्पस क्या है बता दिया, मेरे को भी समझ में आ रहा है कि इसने मुझे क्यों ईमेल करी है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ईमेल में आपने एक सिग्निफिकेंस दिखा दिया। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईमेल आपने एक डिमांड भी बता दी कि इस तरह मैं आपको जॉब अप्लाई के लिए कर रहा हूँ या आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा हूँ, वो क्लैरिटी भी आ जाती है। एंड ये सारा आपने मुश्किल से 6 सेंटेंसेस के अंदर, 6 सेंटेंसेस फॉर द फर्स्ट ईमेल इज ठीक है, बाद में जब एक्सचेंज होगा तो और छोटे समराइज्ड वर्जन्स भी होते हैं। तो ईमेल में आई थिंक इज अ गुड स्टार्ट, क्योंकि आप ईमेल में किसी को देखते नहीं हो, बॉडी लैंग्वेज अच्छा। दिखती नहीं है, द बॉडी लैंग्वेज इज ओनली द ईमेल। फिर एक पब्लिक स्पीकिंग होता है, वहां पे द वे यू स्टैंड, आई आई एम नॉट श्योर बट आई एम प्लेइंग विद द थियोरी, आई फील कि पब्लिक स्पीकिंग में ड्रेसेस का भी एक इम्पैक्ट होता है। मैं बस एक टी शर्ट करेक्ट, शॉर्ट्स हाँ। पहन के, चप्पल पहन के कॉन्फ्रेंस में लेक्चर, कैसा लगेगा मोदी जी लाल किले पे जाके, मतलब बहुत ही कैजुअल कपड़ों में है। एक होता है, ड्रेस का एक अपना एक इम्पैक्ट होता है। पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में ही आएंगे, आर्मी पर्सन अपनी यूनिफॉर्म में आएंगे, एक जो ड्रेस दिखती है उसका एक अपने सीरियसनेस एक इम्पैक्ट आ ही जाता है। थोड़ा रिलैक्स हो, अच्छा। थोड़ा फॉर्मल हो, रिसर्च में ऐसा चलता है, स्टार्ट में कुछ और हो। सॉफ्ट स्किल्स हैव एन इम्पैक्ट टू गेट योर मैसेज, इफ यू वांट योर मैसेज टू हैव एन इम्पैक्ट, vocabulary, choice of words, construct of sentences, फिजिकल अपीयरेंस में फिर कुछ चीजें आ जाती, इफ यू वांट टू गो डाउन दैट रूट। बट शुरुआत में सब गलती करेंगे, विच इज ओके, एक्सपोज योर सेल्फ टू सच थिंग्स, कीप ऑन डूइंग मिस्टेक्स, कंटिन्यू डूइंग मिस्टेक्स, द मोर मिस्टेक्स यू डू द बेटर, एंड देन लर्न एंड ग्रो। ऐसा है। Yes, sir. And so, like in research, there is a lot of hard work that is being done every single day. So, like, is it hard work along with smart work, or is it hard work going on all the down the lane? What is smart work? Like, if I talk about emails, going to ChatGPT and telling what is the purpose of the mail, and getting the content from there and editing it further. That's kind of a smart work that we do for most of the projects as well. And Okay. smart work is hard. And even it's time saving as well. Okay. One was smart work and one was hard work. So I'm Yes, assuming sir. hard work is being associated with more physical effort and smart work is being associated with less physical effort for the same output. Yes, sir. Oh, okay. मैं ये रेशो तो इतना नहीं देखता,
Hmm, मैं ये रेशियो इतना नहीं देखता हूँ ऑनेस्टली. वो आउटपुट let me think about it. Um, I think I'm more. Again, this is my answer. I'm not sure कि ये. I don't expect it to be true for everyone, but ये मेरा आंसर है. Yes. Um, अगर मेरे को कुछ चीज ढूंढनी है तो हम एरर रेट्स बहुत देखते हैं कि इफ आई हैव मेजर्ड इट देन वी हैव टू फाइंड आउट अ रेंज कि ये वैल्यू इतने में तो वेरी करेगा. एंड द मोर प्रिसाइज वी आर इन मेजरमेंट तो वो एरर रेट और कम हो जाता है. एंड लेसर द एरर रेट इज द मोर क्लियर वी आर कि ये चीज वर्क कैसे कर रही है. तो बहुत ही रिड्यूस्ड एरर रेट हमारे लिए फायदे की बात है. In the sense we get a much clearer picture, and getting a clearer understanding is sort of a main objective in the research apart from other things. तो उसके बिना तो आगे फायदा ही नहीं है. तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि दिस फिलोसफी हैज नेवर वर्कड इन माय रिसर्च प्रोजेक्ट कि चल यार इतना तो चलता है, जी. 19-20 चलता है, ये हमारे साथ तो वर्क नहीं करता है. आई रिमेम्बर जब मैं थीसिस भी लिखने लगा था, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द पब्लिकेशंस वर ऑलरेडी देयर, वो फिर भी माइन्यूट डिटेल्स इधर उधर कहाँ कुछ एरर ना हो वो एफर्ट जाता है. इफ वी हैव फाउंड आउट something um, uh, something about the light emitting devices, something about the light sensors, so फिर we have to write our findings into a document or a draft, a research paper, scientific paper. It has to be published, submitted to a journal, which is then peer reviewed. Some professors around that draft is given to professors around the world who review it and then counter question your work, and then you respond to it or do more experiments, or it is accepted. And once it is accepted, it is published in a journal. Meaning, what is submitted by a researcher today in a scientific paper, as a scientific paper in a journal, अब वो पड़ा हुआ है वहां पे for years and years to come. मैं आज भी एल्बर्ट आइंस्टाइन का 1905 का पेपर वो निकाल सकता हूं. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब वो लिखा था ही हैड टू बी वेरी श्योर अबाउट एवरी निटी ग्रिटी थिंग्स ऑफ इट. एंड 20 years 30 years बैक जिन्होंने जो पेपर पब्लिश करे थे, उन्होंने जब वो लिखना था, दे हैव टेकन केयर ऑफ मेटिकुलसली ऑफ ऑल द नुएंसेस, वो हर एक बारीकियत को देखा था. तो अब आप इसको हार्डवर्क कहते हो तो इसको हार्डवर्क कह लो. द द परफेक्शन और टुवर्ड्स परफेक्शन जो आउटपुट है, जो क्वालिटी डिफाइन करता है, that is important for us. The clearer we are to a more realistic understanding, the more nearer we are to the nearer we are to the more realistic understanding, वो काफी important हो जाता हमारे लिए. तो 19-20 का डिफरेंस पे हम हमारे डोमेन में है नहीं. एंड आई वॉन्डर कि स्टीव जॉब्स जब अपने प्रोडक्ट्स बना रहा था तो उनके लिए होगा. आई वॉन्डर जब माइक्रोसॉफ्ट में लोग सॉफ्टवेयर बनाते तो वो 19-20 का फर्क आता है या नहीं, कि आप दबा तो सेव रहे हो लेकिन वो डॉक्यूमेंट प्रिंट कमांड से प्रिंटर में जा रहा है. ऐसा तो गलती तो होती नहीं है. एंड इफ वी वांट एंड खुद की सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करनी है तो चैट जीपीटी से पूछ पूछ के चैट जीपीटी इंप्रूव हो जाएगा. आपका हमारा ब्रेन नहीं इंप्रूव हो पाएगा. एंड इफ आई बेसिकली इफ आई हैव टू राइट आउट अ ड्राफ्ट फॉर माय साइंटिफिक पेपर और मैं चैट जीपीटी में डाल दूं कि भैया मैंने ये किया है, एक पेपर बना दे, और वो बना भी देगा, उसके बाद वो पब्लिश भी हो जाएगा. बट 10-12 पेपर्स डाउन द लाइन आई रियलाइज कि मेरे को खुद नहीं पता कि ये बनाना कैसे है. वो तो व्हेन आई गो थ्रू द ग्राइंड, वो गोइंग थ्रू द ग्राइंड इज द टीचिंग फेस. फ्री में नहीं मिलता. तो ये वाली जो डेफिनेशन है स्मार्ट वर्क की, विच इज आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, और इनपुट इतना कम करो कि उतना ही आउटपुट मिल जाए, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट का रेशियो हाई करना है, वो हम उसमें इतना आउटपुट सही नहीं आता है. इफ यू वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड हाई क्वालिटी, इट रिक्वायर्स इनपुट.
और जैसे कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है एंड इट्स अ हब फॉर एजुकेशन, अगर आप देखें तो नॉट एजुकेशन, इट्स गाइडेंस बेसिकली। तो उसका कोई इम्पैक्ट रहा हो आपकी लाइफ में, समथिंग लाइक हम्म लाइक हिस्टोरिकली और लाइक टेकिंग गीता, कि आपने कभी गीता से गीता पढ़ी हो, समथिंग लाइक दैट? आई थिंक कुछ ना कुछ मेरे को एक चीज जरूर मेरे को फील होता है कि मैं जिस जिस सिटी में रहा हूँ उस सिटी का कुछ ना कुछ हवा या एस्पेक्ट मेरी पर्सनैलिटी में आके बैठ जाता है। अब मेरे को नहीं पता मैं इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, बट उस एक सिटी का कुछ एक नेचर, कुछ हवा, कुछ होता है तौर तरीका, अम, जो ये मैंने कह तो दिया है बट कम्युनिकेट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। अ, जैसे जर्मनी में यहाँ पे मैं देखता हूँ कि टाइम डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी बहुत एपिक है। मतलब एक 900 ऑर्स बोल दिया तो वो 900 ऑर्स पे शुरू होगा। अम, अगर आप 901 पे आ रहे हो प्रॉब्लम है। साउथ कोरिया का थोड़ा अपना माहौल है, कुरुक्षेत्र का अपना वाइब है, केरला चले जाएं तो वहां एक थोड़ा एक अलग लोगों की एक पर्सनालिटी है। तो बेस्ट ऑफ द सिटी तो मैं पिक करने की कोशिश कर ही लेता हूँ, तो वो आ ही जाता है। लकी फॉर मी कुरुक्षेत्र में कई सारी चीजें हैं, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। वहां पे म्यूजियम है तो आपको पता चलता है कि कुछ रेफरेंस पॉइंट्स हैं। आई रिमेम्बर कि साउथ इंडिया से कुछ फैमिली आई थी, तो उनको वी नो देम थ्रू सम मैनर। वो बायोलॉजिकली रिलेटिव्स तो नहीं है बट दे आर फ्रेंड्स। तो डैड ने कहा कि इस तरह वो आ रहे तो तुम उनको कुरुक्षेत्र दिखाओ। मैं सोच रहा हूँ कि यार साउथ इंडिया से कुरुक्षेत्र थोड़ी ना कोई जगह आने के लिए, और यहाँ कौन सा अभी महाभारत हो रहा है जो वो देखने आ रहे हैं। But then I used to have cycle in my bachelor's. I had my cycle through all the 4 years of my BTech. तो मैं साइकिल लेके घूम लेता था। ज्योति सर चला गया, फिर वो जो ब्रह्म सरोवर तो पड़ोस में ही है, एंड कुछ और भी करण का टीला भी है कैंपस के पीछे जाके, तो मैं उस साइकिल पे निकल लेता था। तो जब ये लोग साउथ इंडिया से आए, ये अपने टैक्सी में आए थे दिल्ली से कहीं से, टैक्सी लेके कुरुक्षेत्र आए और मैं उनके साथ बैठ गया और कुरुक्षेत्र के अलग अलग जगह दिखाने लग गया। तो यूनिवर्सिटी से पेहोवा जाते हैं तो ज्योति सर से पहले एक राइट टर्न आता है एंड वो नरकातरी गांव में जाता है। तो जब मैं उनको उधर लेके गया, तो उन्होंने वो विलेज का नाम देखते ही उन्होंने कहा, काफी एजेड अंकल थे, उन्होंने कहा कि ये नरकातरी भीष्म पितामह इधर ही शैया पे लेटे थे। मैंने बोला हाँ जी। एंड ही सेड कि ये महाभारत में इसका जिक्र है। एंड मैं हैरान, मतलब कुरुक्षेत्र मतलब हाईवे पे भी नहीं आता है, ठीक है हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है, बट ये नरकातरी गांव, मतलब मैं समझ सकता हूं थानेश्वर स्थानेश्वर से डिस्टॉर्ट होके थानेसर बन गया, वो मैं समझ सकता हूं कि कुरुक्षेत्र साम्राज्य रहा होगा, एक कैपिटल स्थानेश्वर है, मैं वहां तक पकड़ सकता हूं। बट नरकातरी गांव तक का भी जिक्र है महाभारत में। तब मतलब कि कुछ ऐसे अलग अलग रेफरेंस पॉइंट्स हैं जो मैंने पिक कर लिए हैं ओवर द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम माय टाइम इन कुरुक्षेत्र की। और एक क्यूरियस माइंड तो है ही है कि कोई चीज मिल गया तो अब उसके पीछे लगे डिगिंग करने, तो मेरी मेंटालिटी तो है ही ऐसी। तो ऐसे कई रेफरेंस पॉइंट्स बिल्डअप कर चुका हूं मैं अब तक। तो है उसका एक और फनी एनफ, मेरे को किसी ने कह दिया था रेलवे स्टेशन, एक पॉइंट था किसी के साथ में कन्वर्सेशन करा था एंड उन्होंने एक मजाक मजाक में बात छेड़ दी, और जो थोड़ा बहुत मेरे को लगा कि उसमें उन्होंने कह दिया कि आप इतना सब पढ़ रहे हो, इस शहर से हो और आपने गीता ही नहीं पढ़ी। ये तो वो बात होगी कि आपने फर्स्ट क्लास में हो लेकिन आपको एबीसीडी नहीं आती। तो उन्होंने बड़ी पासिंग वे में कह दिया, वो चले गए। मेरे लगा यार कुरुक्षेत्र हूं, एटलीस्ट कम से भगवत गीता तो कम से कम तो उठा के एक बार देख लेनी चाहिए, वो छप गया था।
अब उन्होंने किस पर्पस से कि उन्होंने मजाक कर दिया, वो चले गए, वो उनका कुछ भी नहीं था, वो मेरे दिमाग में रह गया। एंड देन आई डिड पिक अप भगवत गीता एंड वो मैंने पढ़ी भी, नॉट जस्ट संस्कृत, अलग अलग लोगों की क्या उस पे कमेंटरी है श्लोका वाइज, एंड वो मैंने उसका पढ़ा। अम, बाप रे, इट्स अ मतलब इट्स अ, एक तो अर्जुन के सवाल, ऊपर से कृष्ण के जवाब, और कृष्ण जी जवाब दे जा रहे हैं, अर्जुन काउंटर करी जा रहा है, और अर्जुन भी ऐसे नहीं कि जवाब सुन लिया तो मतलब भगवान, वो कितनी बार तो वो आता है भगवत गीता में, श्री भगवान उवाच, और कृष्ण अर्जुन को ही पता है कि मतलब साक्षात कृष्णा बता रहे हैं जवाब, तो कह, एक होता है ना कि यार बड़े ने कह दिया तो सुन लो, ज्यादा मत पूछो, नहीं लगे हुए हैं अर्जुन, अपनी क्यूरियोसिटी सॉल्व करने पे लगे हुए हैं, और कृष्णा जी जवाब दे रहे हैं, उनको ही पता है कि ये सुन रहे हैं, समझ रहा है, और वो और डेप्थ में जाई जा रहा है कि नहीं अभी भी मेरे ये डाउट्स हैं, वो और सवाल पूछे जा रहा है 18 चैप्टर तक। फिर अलग अलग कमेंटेटर्स की इंटरप्रिटेशन ऑफ भगवत गीता, इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट, इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट अ, यहाँ पे लिखा है तो आप इंप्लीमेंट कर लो, ये वो भाषा नहीं है। इन माई अंडरस्टैंडिंग मेरे को लगता है कि गीता इज जेन्युइन क्यूरियोसिटी बाय समवन, एंड वो क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस में तो हो ही रही है और उसके आंसर्स मिल रहे हैं। इट्स अ जेन्युइन सर्च कि ये कैसे है, ये सब कैसे हैंडल करना चाहिए, किस तरह डील करना चाहिए, वो जेन्युइन क्वेश्चंस है वहां पे। आपको फॉलो करना आप करो, नहीं करना मत करो, बट ऐसे वो सारे लॉजिकल क्वेश्चंस है वहां पे, टू एवरी आंसर ऑफ श्री कृष्ण। तो मैं उसको उस तरीके से देखता हूँ, एंड इट हैज बीन हेल्पफुल। So for sure एक बार गीता तो हम भी ट्राई करेंगे because I haven't read it. Like एक चैप्टर करा था and then I had to drop it because फिर मेरे 11th के एग्जाम्स आ गए थे. During the code अरे आप only I कुरुक्ष started it once. अरे आप कुरुक्षेत्र में आपने गीता नहीं पढ़ी, दिस इज लाइक कि फर्स्ट क्लास में और आपने एबीसीडी नहीं आती। अभी ABCD करते हैं सर. अभी तो अपने सब्जेक्ट से पढ़ने में नहीं आ रहे. There were certain subjects in mechanical that I didn't study. I can risk it क्योंकि फिर पापा डांटेंगे सर. Okay. There were certain Yes sir. subjects I didn't study. There were certain subjects कि उन पे तो मैंने तीन तीन चार चार किताबें पढ़ ली। तो ऐसा है, just took very few subjects seriously, not all of them in mechanical. And the college friendship, bachelor's के friendship, time spent, are they still in contact? Yeah, everyone is busy with their own lives. Lucky for WhatsApp group हम लोग हैं, हम लोग ग्रुप में हैं, तो कनेक्टेड तो मैं हूँ, हम बात कर लेते हैं, हमको पता है कौन कौन कहाँ कहाँ पे है, तो हम कनेक्टेड है, बल्कि जर्मनी में भी कुछ बर्लिन में यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ भी उठना बैठना मिलना वगैरह हो जाता है। एंड कुरुक्षेत्र कैंपस का एक अच्छा चीज ये है कि वो जो यूनिवर्सिटी है ना, अमंगस्ट अदर यूनिवर्सिटीज मैंने देखा है कि उसकी मार्केट थोड़ी साइजेबल है, इलेबोरेट मार्केट है, वो चीजें मिल जाती हैं वहां पे। कुछ कैंपसेस इन इंडिया मार्केट्स में बहुत चीजें अवेलेबल भी नहीं होती हैं, तो काफी मूवमेंट्स हैं कैंपस के। तो वो एक बॉन्डिंग बना देता है, चाय फ्रूट शेक सैंडविच कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, एंड फिर आप शाम वहां पे बिताते हो कैंपस में बाहर, तो इस तरह के सोशल टाइम्स तो मिल ही जाते हैं, फिर वो याद भी रहते हैं। So, any moment you want to share something that is remarkable कि ये तो best moments थी college time की. एक हो तो बताऊं, एक हो तो सर आप दो बताऊं, बता दीजिए. और बहुत सारे हैं। मेरे को पता नहीं, अब मैं कुछ बता दूंगा तो आई थिंक आई शुड टेल वन जिसमें सिर्फ मैं ही इन्वॉल्व हूँ। Sure sir. एक बार, नहीं आई थिंक आई हैव टू बी क्लियर कि मैं जो बता रहा हूँ वो तो सडनली द मोमेंट यू हैड दिस क्वेश्चन, मेरे को तो एक फ्लड ऑफ सडनली थॉट्स एंड आई एम जस्ट जैम्ड कि क्या बताऊं।
cut this part from the podcast. No issues, sir. काफी नोटोरियस, इतना भी नोटोरियस नहीं है. ओके, एनी हाउ दैट इज द वन थिंग दैट इज कमिंग टू माई माइंड. दैट वाज टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय बैचलर्स. कोई एक शाम थी हमारे हॉस्टल में. आई थिंक उस रात वो मून, क्या कहते हैं, न्यू मून नाइट, जब अमावस. एंड पिछले 1-2 दिनों से बारिश चल रही है. एंड उस दिन स्पेसिफिकली इतनी तेज बारिश और हवा चली कि कोई पेड़ गिरा और इलेक्ट्रिक लाइंस पे गिरा और इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई हॉस्टल की. तो अब लाइट ही नहीं है. और लाइट नहीं है तो अब आप हॉस्टल के रूम्स में थोड़ी ना बैठोगे. अब तो बाहर जाओगे, दोस्तों से मिलोगे. और अब शाम हो चुकी है, सनसेट हो चुका है, अब अंधेरा. बाहर जाओ, कुछ बाहर थोड़ा बहुत भी सेंस आ जाए आपको, लेकिन आपको तो कम से कम हॉस्टल के कॉरिडोर में कुछ नहीं मिलेगा. तो ओके, दिस इज वेरी इनअप्रोप्रिएट टू से नाउ दैट आई थिंक, बट उस जब भी हम बैठते तो हम तो इसको तो याद करते हैं. तो हमारा जो कुछ 3-4 लोगों का कुछ बॉन्ड था, हमको पता नहीं क्या खुराफाती सूझी. हमने किसी के ग्राउंड फ्लोर पे हॉस्टल रूम के बाहर बालकनी पे जो तौलिए लटकते थे किसी के, वो रैंडमली उठा लिए. और हॉस्टल के कॉरिडोर में अंधेरा, पिच ब्लैक, मतलब यहां से इंसान जा भी रहा हो तो आपको दिखेगा नहीं, इतना ब्लैक. तो हम दीवार के साथ सट के खड़े हो गए और हमको पता कि कोई तो जा रहा है. एंड जो भी जा रहा है, कौन है पता नहीं. एंड उसके ऊपर बस तौलिया रखा और उसको दिवाली मनाई उस बंदे की, और फिर भाग गए वहां से. एंड इस तरह फिर दूसरे कॉरिडोर में चले गए, वहां किया. तो आधे घंटे तक तो हमने ये किया. तो फिर तब हमने लिस्ट बनानी शुरू करी कि और किस किस के साथ दिवाली खेलनी इस तरीके की. तो किसी के फिर पता चला कि वो दूसरा जो सी ब्लॉक है उसके 3rd फ्लोर पे जाते हैं. तो 3rd फ्लोर पे जब गए तो उसके रूम के बाहर थे, तो जाने लगे थे, उधर खड़े रहे. हमने सोचा कि कभी तो निकलेगा. उधर ऑलरेडी 2-3 लोग बैठे थे उस रूम में. तो किसी ने आके कहा, यार पता है वो ना बी ब्लॉक में कुछ लोग कॉरिडोर में खड़े होके तौलिया रख के ना सबको मार रहे हैं. तो हमें लगा कि ये थोड़ा फेमस हो गया है, तो ये आइडिया ड्रॉप करते हैं. तो फिर हमने ड्रॉप किया. फिर बाहर आ गए मैं और मेरे दोस्त. तो अपनी साइकिल निकाली और साइकिलिंग करने लग गए. तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि यार बारिश हो रही है, साइकिलिंग कर रहे हैं, थोड़ा दूर तक चलते हैं. कहता, हाँ कहाँ तक चल रहा है. मैंने बोला दिल्ली चलते हैं. तो कहता, चल स्टेशन तक चलते हैं. मैंने बोला नहीं, साइकिल पे ही चलते हैं. फिर रात के 11 बजे निकले और सुबह 10 बजे नोएडा थे. Bicycle. काफी खुराफाती था वो सब. तो ये भी थोड़ा मेलो है. मैंने आई थिंक बहुत सारी स्टोरी स्किप करी है, बहुत सारी स्टोरी स्किप करी है. अभी अच्छे बनते हैं. कैंप ये हॉस्टल लाइफ का फायदा होता है. यू गेट टू लिव विद सो मेनी पीपल, अलग अलग माइंड्स होते हैं, उठना बैठना होता है, खाने पे भी. अरे यार एक चीज बड़ी मस्त है, दिस थिंग कि आप कैंटीन में बैठते हो और प्लेट आ जाता है और खाना आ जाता है. ये मैंने और कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया है आउटसाइड इंडिया. आपको हर जगह यू हैव टू पे फॉर द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मील, और वो काफी एक्सपेंसिव होता है. ऑस्ट्रेलिया में तो कैंटीन था ही नहीं, हॉस्टल लाइफ तो थी ही नहीं. यूके में भी शायद से नहीं है, यूएस में भी इन माई एक्सपीरियंस नहीं है. ये जो लाइफ है ना, जो इंडिया में आपको ये जो मिलती है हॉस्टल लाइफ, ये अनपैरेलल. ये अपने आप में आपको क्या सिखा जाएगा ये आपको उस समय नहीं पता चलता, वो बहुत देर बाद पता चलता है. तो आपको बहुत देर, सालों बाद पता चलता है कि यार इस माहौल में जब इतने लोग हैं, क्यों आप लोगों के साथ इस तरह बिहेव करोगे, अजीब माहौल करोगे. देन आई रियलाइज कि यार मैं हॉस्टल में रहा हूं, मेरे को पता है कि मैं इस माहौल से कब गुजर के कब सीख गया, पता ही नहीं चला. उसमें कब मस्ती करनी है, किसके साथ अच्छे से रहना है, वो सब सीख जाता है इंसान हॉस्टल में रह के. मैं नहीं कह रहा कि घर में मत रहो, अकेले मॉम डैड से रहने में प्रॉब्लम है, बट हॉस्टल लाइफ स्पेशली इंडिया में अपने आप बहुत कुछ सिखा जाता है. मस्ती वगैरह सब एड ऑन जो भी एक्स्ट्रा है.
जी, और मत पूछना। sure, sir. हम्म। But this thing for sure कि hostel life बहुत कुछ teach कर जाती है. Like if I compare my own self, like what I was 1 year back and what I'm right now, there is a difference. A difference that I can't like I kind of see it as of now, but my friends they know कि भाई there are changes and these positive changes. Maturity, that understanding, कि let things go. There is not everything in this world that needs your reaction. And some things are taken too bit lightly, some are way too serious than we think. So this thing for sure. कभी ऐसा होता है कि मूड ऑफ है तो यार वो आपकी कोई फ्रेंड होगी तो उसके कमरे में जाके नॉक कर दो, ऐसा होता है? Aditi Didi. ठीक है। तो मतलब वो फ्रेंड अवेलेबल है आपके लिए, हाँ जी, और कोई परमिशन तो लेनी नहीं है कि हाँ जी. एक दूसरे के रूम में बैठे हुए हैं, कितनी देर तक गप्पे चल रही हैं? Yeah, actually, I don't even knock. We people don't knock. We know she's there. तो And if she's there, then she is for us only. हम्म, तो ये हॉस्टल लाइफ में मिलता है। एंड फिर आप कहीं बाहर जाके कहीं रहने लग जाओगे तो आपको पड़ोसी के घर सोचना पड़ता है कि यार अभी लॉक नॉक करें ना करें, उससे मिले ना करें। जो हॉस्टल लाइफ में एक फ्रीडम होती है ना, एक दूसरे के कमरे में बस चले जाओ गप्पे मार लो, वो अनपैरेलल्ड है वो एक्सपीरियंस। She. I wish we had time कि हम और stories सुन सकते हैं because your stories are really interesting as compared to mine. Or maybe it's because it's only 1 year here and you have spent it till 4 years. Whatever it is, but I wish we had time. So, and it नो was प्रॉब्लम। really a fascinating, yeah, it was actually a fascinating conversation with you that we had today. And really a huge thanks to you, like coming here, taking time out for us, and sharing these many insights, your advice, and these stories as well. Thank you for your time, sir. No problem. Thank you. I do not know how I came of any help, but thanks for your time and thanks for having me.